Good morning, beta. Am I audible? Am I audible, beta? Sure. अरे 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं बेटा.
Chalo. Good morning to everyone, beta. So today is our second topic in the current electricity, that is about your drift velocity. Drift velocity. फॉर्मूला याद है बेटा सभी को? ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय Vd. इन कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स पीछे के डायरेक्शन में जाते हैं बेसिकली, ये मान के चलो ये अपना कंडक्टर है. It is been connected with some positive terminal and this one with your negative terminal. तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली n number of your electrons इस तरह से. So these electrons generally drift in the backward direction. So the velocity with which they are drifting in the backward direction is called as drift velocity. और conventional flow of current जो होगा ना basically इस direction में current होगा और electronic current opposite to that one होगा. And this is the length of the conductor. This is nothing but of your L. And this is the potential applied for me. That is nothing but of your V. Okay. So electrons will be drifting in the backward direction. The drift velocity is given by the formula. Vd is equals to in terms of electric field, charge of electron, electric field E bar into tau divided by your mass m. This will be equal to your in terms of अगर हम लोग पोटेंशियल में लिखना चाह रहे हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है E is equals to your V by your L, relation between electric field and electric potential. तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Vd is also equal to your small e into electric field की जगह मैं potential लिख सकता हूँ, that is nothing but V into your relaxation time divided by your mass m into your L part of relation. So this is an important relation of your drift velocity in terms of electric field and in terms of your potential part. So V is your क्या है बेटा? Potential है. Capital V is your potential. Capital V is your potential and T is your relaxation time part of relation. So number of free electrons कितने रहते हैं बेटा इसके अंदर? राइट ना, n जो बेसिकली बोलता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान के चलो n ले ले, या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मान के चलो n ले ले. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज नथिंग बट ऑफ योर E. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कौन सी डायरेक्शन में आती है बेटा, किसी को याद है? What is the direction of electric field? Positive terminal to your negative terminal. यहाँ पर लिखा देता हूँ मैं बेसिकली. हाँ, so ये हो गया डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड. This is the direction of your electric field. ठीक है ना? अच्छा, तो इसके अंदर और एक टर्म भी याद रखना है बेटा अपने को, n. So what is your n right now here? Free number of your free electron density. Free electron density. Free electron density बोल सकते हैं, या इसको हम लोग number of free electrons, number of free electrons per unit volume भी बोल सकते हैं. पर यूनिट वॉल्यूम मैं पूरा चैप्टर फ्रॉम एवरी कॉर्नर कंप्लीट करूंगा बेटा. ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक हम लोग मिस करेंगे, बट ओनली थिंग इज विल बी नॉट डूइंग द डेरिवेशन व्हिच इज ऑफ नो यूज फॉर अस. अदरवाइज एवरीथिंग व्हिच एवर इज रिक्वायर्ड विल बी ट्राइंग टू डू इन दिस वन. एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एरिया ऑफ योर क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ योर क्रॉस सेक्शन. करंट इलेक्ट्रिसिटी 2-3 बार पढ़ लो, 2-3 क्वेश्चन आते हैं कभी कभी तो. So it is very very important area और formula based ही होते हैं और simple questions होते हैं, तो don't miss this topic if at any cost, right? ठीक है, चलो ये हो गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है मेरे पास Vd is equals to charge of electron into electric field into tau divided by mass. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equals to E into V tau divided by m into your L. V is your potential, L is your length, and N is nothing but free electron density or number of free electrons per your unit volume. ठीक है. Now if I am going for the next one, dependence on your shape. Dependence on your shape. Dependence on your shape. अगर मान के चलो शेप यूनिफॉर्म है, अगर मान के चलो shape is uniform. Shape is uniform. जैसे ऐसा वाला कंडक्टर होता है बेसिकली. ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली. दिस इज योर इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस विल बी ड्रिफ्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. Vd.
and this one is connected to the positive terminal of your battery, and this is connected to the negative terminal of your battery. शेप अपने पास अभी यूनिफॉर्म है इसमें, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके अंदर राइट नाउ मान के चलो ये पूरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये पूरा नेगेटिव टर्मिनल होगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज योर नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, शेप इज यूनिफॉर्म, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पास कांस्टेंट रहेगी। V is equals to charge of electron electric field E into tau divided by your m। शेप यूनिफॉर्म है, if shape is uniform, then drift velocity is equals to constant, ये बात याद रख लेना बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, अगर शेप मान के चलो नॉन यूनिफॉर्म है, शेप मान के चलो नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा कुछ कोनिकल शेप, ठीक है। सो यहाँ पर एक टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर एक टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एंड दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, तो यहाँ पर पूरा पॉजिटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पर पूरा नेगेटिव टर्मिनल होगा इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इन दिस वन। आई कैन राइट हियर E bar, इलेक्ट्रिक फील्ड E bar इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस वन इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास चेंज हो जाएगी। मान के चलो इसके अंदर मैंने 2-3 पॉइंट्स ले लिए, अब यहाँ से यहाँ तक फ्लो ऑफ हो रहा करंट, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, मान के चलो दिस वन इज योर ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा रहेगी, कोई बता सकता है क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन इस तरह से, नथिंग बट ई बार। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा रहेगा बेटा, तो बता सकता है पॉइंट ए बी एंड सी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा रहेगा, जहां पर से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर पी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट योर ए is greater than electric field at your B, electric field at your B is greater than the electric field at your C। So what is the relation between the electric field and drift velocity बेटा, drift velocity के अंदर they are directly proportional बोल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि drift velocity of your A will be greater than your drift velocity of your B and drift velocity of your B will be greater than the drift velocity of your C। तो इस पे क्वेश्चन है तो कर लोगे ना अभी नॉन यूनिफॉर्म में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो लिख ले सकते हो, बिकॉज फ्रॉम दिस लोअर क्रॉस सेक्शन टू लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, एट पॉइंट बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस एंड एट पॉइंट सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर लेसर कंपेयर्ड टू दैट वन, ठीक है ना। चलो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं और एक टर्म इसके अंदर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ। रिलैक्सेशन टाइम दो चीज पे डिपेंड करता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम टाउ decreases, this will be decreasing as the free electron density increases, as free electron density, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इट विल बी डिक्रीजिंग। रिलैक्सेशन टाइम ऑल्सो डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इसका बढ़ाओगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम इसका कम होते जाएगा। सो आई कैन से दैट रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मटेरियल एंड एज वेल एज ऑफ योर, मैं बोलता हूँ सही, देखो इस पे यहाँ पर एक एरो मार्क लगा दो, इस तरह से यहाँ पर एक एरो मार्क लगा दो, रिलैक्सेशन टाइम विल डिपेंड अपॉन योर मटेरियल,
मटेरियल चेंज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो जाएगा, और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। तो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो बेसिकली टेम्परेचर मटेरियल मतलब क्यों बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज होते रहेंगे, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हुए देन द नंबर ऑफ कोलिजन्स आल्सो इंक्रीजेस एज दे अकर क्विकली, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहे हैं, if free electron density is increasing then the number of collisions also increases ना, so अगर number of collisions increase हो रहा है तो then they occurs very quickly, so the relaxation time will be decreasing। अगर दोनों के बीच में टकरार जो हो रही है, collision जो हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है, तो टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, अगर टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, टाइम फॉर द कोलिजन डिक्रीज हो गया। अगर मान के चलो दो जने लड़ रहे हैं एक रूम में, तो लोग को बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगी, सो दैट दे विल गेट ए टाइम टू गो बैक एंड कम। वही रूम के अंदर अगर मैं मान के चलो 100 लोग को डाल दिया, तो एक को एक चिपक के मारने करना शुरू करेंगे ना, तो दोनों को इधर उधर जाने की झंझट भी नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, टाइम जो मिलता है ना पीछे जाके आने का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मटेरियल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर द कॉन्सेप्चुअल। सो इफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases, free electron density increases, then number of collisions क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, number of collision increases and they occur very quickly, so tau क्या हो जाएगा बेटा, रिलैक्सेशन tau डिक्रीज हो जाएगा, टाइम फॉर द कोलिजन विल बी डिक्रीज। बात क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन। अब टेम्परेचर क्या होगा बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा बताओ, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है देन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दो थियरी पॉइंट्स को अपने को याद रखना है। रिलैक्सेशन टाइम छोटा है, जनरली बच्चे ओवरलुक करके चले आते हैं कि कुछ नहीं आएगा इसमें बहुत सारी कहानी है। रिलैक्सेशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ, टाउ विल बी डिक्रीजिंग एज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे दिया, खाली अगर इस पॉइंट को भी अगर आप याद रख ले रहे हो दैट इज मोर देन इनफ फॉर द गिवन कंडीशन। अगर इस पार्ट को भी याद रख ले रहे हो ना, that is more than enough for me for the given condition। ठीक है, is it clear for everyone? चलो, तो आज क्या कर लिया हम लोग, we have done today about your drift velocity and we have done about your क्या बोलते हैं और एक टॉपिक डिपेंडेंस ऑन द शेप, और उसके साथ हम लोग उसके बाद डिपेंडेंस का बात कर लिए। Now let us try to go for the next one, that is nothing but next topic, relation between, ये आप लोग को आता ही होगा, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, relation between current and drift velocity, current and your drift velocity। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी हम लोग को डेरिवेशन याद रखना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसका रिलेशन याद कर लें तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा यूज हो जाता है। बेसिकली पहले करंट कैसे निकालते हैं बताओ राइट नाउ फॉर एवरीवन, करंट विल बी इक्वल टू योर चार्ज बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय योर टाइम, isn't it? So यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मैंने बोला था n will be equal to your free electron density, free electron density मतलब number of electrons per your unit volume। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ I is equals to your n into E divided by your T, okay, n into T divided by your T, n is nothing but of your number of free electrons। सॉरी मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देता हूँ तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होगा। चार्जेस कितने हैं मतलब कैपिटल N into E divided by T, कैपिटल N is nothing but number of your electrons which have been present in this one,
सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर योर यूनिट टाइम, अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, डिराइव किया होगा ना आप लोग ने, तो इसको हम लोग लिखते हैं वीना से, आई इज इक्वल्स टू योर वीना, VENA। सो V को हम लोग यहाँ पर D लगाते देते हैं, दैट इज नोन एज ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Isn't it? Current in terms of your drift velocity क्या है? Basically, I is equals to your V ना, I is equals to your V ना, जहाँ पर drift velocity की general range होती है, basically जिसकी capacity होती है, that is 10 to the power of -3 से लेके 10 to the power of -4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर सकता है इसे। ठीक है, यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? n is nothing but of your free electron density. So relation between current and drift velocity is what? I is equals to your V ना. V is nothing but your what? Drift velocity. V is nothing but what for me? Drift velocity by definition. Clear है सभी को? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया तो ये फॉर्मुलाइज करना। क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया तो ये फॉर्मूला यूज करना। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो डायरेक्टली हम लोग ये यूज कर लेना, रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड एज वेल एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बहुत ज्यादा है सामने, लेकिन फिलहाल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? हमें एरिया ऑफ क्रॉसिंग। वी ना बोल के याद रख लो, अच्छी तरह से याद रह जाएगा शॉर्टकट में। रिलेशन बिटवीन करंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equals to V ना। ठीक है, ओके सर। चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा करना। मान के चलो व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन फॉर यू इन द प्रॉब्लम, मॉडल देखो कैसा होता है। मॉडल 1 फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में प्रॉब्लम में क्या दिया रखा रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया रखा होगा व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन, when free electron density is given. Okay, so अगर मान के चलो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखा है तो पूछेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होगा? मान के चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अच्छी तरह से लिख लो बेटा सभी लोग। ए कंडक्टिंग वायर carries a current of 1 ampere, given there are 2 into 10 to the power of 22 free electrons per centimeter cube, if area of cross section is 1 mm square, calculate drift velocity. देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? कंडक्टिंग वायर कैरीज ए करंट ऑफ कितना? 1 एम्पियर। तो इसमें करंट दे रखा है मेरे पास, isn't it? He has given me the current कितना है मेरे पास? I is equals to 1 ampere। पहले डाटा लिख लेता हूँ, देखो जल्दी से। Given there are 2 into 10 to the power of 22 free electrons per centimeter cube, यानी n दे रखा है, n is equals to 2 into 10 to the power of 22 free electrons per centimeter cube। सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2 into 10 to the power of 22 divided by, this will be सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 10 to the power of -2 होल क्यूब हो जाएगा। 10 to the power of -2 होल क्यूब यानी 10 to the power of -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो that will come out for me 2 into 10 to the power of -6 ऊपर चले जाएगा तो प्लस बन जाएगा 26, 27, 28। 2 into 10 to the power of 28 पर मीटर क्यूब बन गया। ये तो ऐसा सिस्टम में आ गया। और एरिया दे रखा है कितना मेरे को? 1 mm स्क्वायर। एरिया इज गिवन फॉर मी हाउ मच? 1 mm स्क्वायर। देखो 1 mm स्क्वायर एरिया दे रखा है मेरे पास, तो 1 mm को हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 to the power of -6 मीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या प्रॉब्लम में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd is equals to how much? ड्रिफ्ट वेलोसिटी is equals to how much? तो फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से? करंट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला? VENA, V ना, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब अपने को निकालना क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाहर निकालो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is equals to I divided by your f into e into your area of cross section, ठीक है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू योर, अब इसका डाटा डाल दो उसके अंदर, जो भी दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखा है कितना मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा 2 into 10 to the power of कितना है बेटा 28, 2 into 10 to the power of 28। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा किसी को याद है, 1.6 into 10 to the power of -19 into एरिया कितना है 10 to the power of -6। तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास 10 to the power of 28, 10 to the power of -19, 10 to the power of -6। देखो कितना आ रहा है जल्दी से, ऊपर को मैं 10 कर लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये हो गया 1.6, ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ ये हो गया 28, ए -19, ए -6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ एक 3 यहाँ पर आ जाएगा, एक 10 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 बराबर लिखा है मैंने 1.6 को 16 लिख लो, 16/10 लिखो, तो 10 और 10 ऊपर चले जाएगा तो ये 100 बन जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, 16 32, 62, तो ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ 3 और ये हो गया 1, तो 10 टू द पावर ऑफ 4 ऊपर चले जाएगा तो 10 टू द पावर ऑफ -4 बना। तो ये बना कितना देखो मेरे पास 10 टू द पावर ऑफ -4 मतलब ये बन जाएगा 100/32 यानी 3.2 लिख सकता हूँ ना मैं, 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा जल्दी से, कहीं कुछ गलती तो नहीं की मैंने पावर्स में, देख लेता हूँ 10 टू द पावर ऑफ 28 हो गया -19, तो हो गया कंस 10 टू द पावर ऑफ सो 10 पावर ऑफ 6 1, 2 into 1.6, 2 into 1.6, तो 1.6 को मैंने 16/10 ले लिया, तो 10 ऊपर चले गया तो 100, 2 16 32, तो 100/32, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4 ये ऊपर चले गया 10 to the power of -4, तो 100 को अगर नीचे ले लिया तो 3.2 में आ जाएगा ये 3.2 into 10 to the power of -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, सभी को क्लियर है कैलकुलेशन? Is it everyone clear? When free electron density is being given, you need to do the problem in this way. Clear है सभी को? Yes sir. Yes sir. Next one. मॉडल नंबर कितना था 1। ओके चलो नेक्स्ट मॉडल देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कैसा आता है। मॉडल 2, when free electron per unit length is given। क्वेश्चन में कभी कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बजाय इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पर योर यूनिट लेंथ दे देगा, तो जब कैसा करो, ये क्वेश्चन देखो पहले। ए वायर carries current of 1.6 ampere if free electron per centimeter are 2 into 10 to the power of 22। ठीक है, calculate drift velocity, चलो करके बताओ क्या दे रखा है। देखो मैंने करंट कैरी से करंट दे रखा है मेरे पास, करंट I इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा 1.6 एम्पियर। फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब N/L दे रखा है ना, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर योर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू कितना रखा है 2 into 10 to the power of 22, होता है ना, 2 into 10 to the power of 22 पर सेंटीमीटर।
लेंथ इज पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर कितना हो गया बेटा 10 टू द पावर ऑफ -2, 10 टू द पावर ऑफ -2 ऊपर चले गए तो कितना बनेगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 पर मीटर आ जाएगा। आया सभी को, आया सभी को? Yes, sir. I is equals to n into e into a into drift velocity, ये फॉर्मूला लगा लेना अपने को। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा, n is nothing but of your number of free electrons per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये हो जाएगा n बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, ठीक है ना, n की वैल्यू। तो अब ये वैल्यू लेके आके मैं करंट में डाल रहा हूँ बेसिकली, मान के चलो करंट का फॉर्मूला बन गया मेरे पास, I इज इक्वल्स टू, अब n की वैल्यू में क्या डालूंगा मैं, n डिवाइडेड बाई ये इंटू योर l इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया इंटू योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एरिया चले गया मेरे पास, अब आया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ योर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ के कंडीशन में, I इज इक्वल्स टू योर n बाई योर l, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है, इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ गया, n बाई l की वैल्यू मैंने निकाल चुका था ऑलरेडी, तो n बाई l की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24, अब इसको डाल दो, इसमें करंट आ जाएगा। अपने को निकालना क्या था, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो इसमें से, vd will be equal to your how much बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd will be equal to your करंट I डिवाइडेड बाय ये पूरा नीचे चले जाएगा n बाई योर l इंटू योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया E। करंट की वैल्यू डाल दो, यहाँ पर कितना आया 1.6 डिवाइडेड बाई n बाई l की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ योर -19। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है, देखो क्या क्या चले जा रहा है, आराम से 1.6 का चलेगा, ये 1.6 चले गया, तो ये हो गया मेरे पास 1/2, तो ये हो गया मेरे पास 1/2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये कितना बना बेटा 10 टू द पावर ऑफ -5 मीटर पर, कितना बन जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना बेटा, कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। पावर बराबर आया नहीं आया देख लो, 10 टू द पावर ऑफ 24 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 बराबर है ना, 10 टू द पावर ऑफ 5 आ जाएगा, है सर, ले जाएगा तो 10 टू द पावर ऑफ -5 आ गया सभी को, ठीक है। यस सर। और एक मॉडल इसमें इस तरह से पूछता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, लिख लिया सभी लोग क्वेश्चन, नहीं खाली सुन रहे, खाली सुने तो यूज नहीं रहता, उसके बदले सो जाना आराम से। मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ भी आप लोग लिखते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ यूज होगा। मॉडल नंबर 3 देखो, जैसा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, कभी कभी क्या हो जाता है कि ही विल बी गिविंग यू व्हेन, मान के चलो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम देता है, पर एटम आर गिवन। ये मैं बोलूंगा कि ऐसा वाला मॉडल जो ना थोड़ा हायर लेवल पे होगा, तो ये हो गया थोड़ा एडवांस लेवल मान के चलो, यानी अगर पेपर थोड़ा टफनेस में जा रहा है या कोई एक क्वेश्चन टफ आ गया तो ये थोड़ा टफनेस में चले जाएगा बेसिकली, तो ये हो गया थोड़ा टफ क्वेश्चन, जो मैं जनरली एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे वाले क्वेश्चन आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ के ही आए, अनलेस एंड अनटिल योर कैलकुलेशन इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज इतना वैसे वाला क्वेश्चन के लिए 5 मिनट तो मिनिमम लग ही जाता है क्वेश्चन पढ़ के उसको समझने में, क्योंकि क्वेश्चन ही लंबा लंबा होता है बेसिकली, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रीड दैट लॉन्गर क्वेश्चन समटाइम्स। सो बट एनीहाउ मैं आप लोग को मॉडल बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो। मान के चलो मेरे पास एक कॉपर वायर है, वी हैव गॉट ए कॉपर वायर which carries a current of यो 1 एम्पियर, ओके मैं मान के चलो 4 एम्पियर ले लेता हूँ, carries a current of your 4 ampere, given area of cross section, given area of your cross section is 1 mm square, 1 mm square, and each copper atom contributes 1 free electron,
तो मैं पूछ रहा हूँ फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फाइंड आउट योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी given in the problem. Density of copper is 9000 kg per meter cube, or molecular weight of your copper is equals to 63 gram per your mole, 63 gram per your mole. ठीक है सर हाँ बेटा, एक बार स्टार्टिंग से बताइए ना, स्क्रीनशॉट ले लेते, टाइम हो गया। टाइम भी हो गया। चलो, ये आज की क्लास थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। बहुत बढ़िया नोट्स दे रहा हूँ बेटा, जो रियली इंपॉर्टेंट और शॉर्ट में दे रहा हूँ हर कुछ, और हर मॉडल कवर कर रहा हूँ। तो डोंट मिस द करंट इलेक्ट्रिसिटी नोट्स, कोई भी एंगल में नहीं छोड़ रहा। तो आप लोग एवरी कॉर्नर का प्रॉब्लम भी, मॉडल भी बता दे रहा हूँ, तो प्लीज बी लिटिल बिट केयरफुल। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है। तो ये हो गया पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। उसके बाद ये हो गया डिपेंडेंस ऑफ शेप का, रिलैक्सेशन टाइम, उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equals to charge by time। उसके